Hello, friends. Welcome to another special episode of the Coffee Conversation Show under series The Emerging Lawyer. Today, we have with us Advocate Pankaj Bafna. He is a seasoned legal professional specializing in cyber law and financial fraud cases. He's having over 29 years of experience and he is a senior partner at Bafna Law Associates. Today's theme is decrypting cybercrimes, insights from legal industry. So I'm Lion Amir Virani, your host for the Coffee Conversation Show and tech evangelist at Prime Infotech Solution. So welcome, Pankaj, to the special episode. We are sitting in your office. So how is the feeling, Pankaj? Obviously, someone coming to my office is my guest and making me privileged that at my place itself I'm getting renowned to you. Okay. So Pankaj, let me explain to you this Coffee Conversation shoot. We do in three rounds. One is first round is a professional round. Second is the personal. Third is the rapid fire round, which will be a surprise, and you have to answer very quickly. So hope you're comfortable. I'm used to it. We get every day in the court. So let's begin. So Pankaj, this is the first question for your professional journey. What inspired you to specialize in cyber law and financial fraud cases? See, my inspiration regarding the information technology is my father, is my dad. I pay high regards to him. He's still there by the grace of God with me. He was the first person to push me when in the 80s when I'm from the jewelry background, and I used to be a retail sales counter person. Okay. He used to tell me, जब देखो तब इधर बैठा रहता है, बाप के इस पे कब तक बैठेगा, कुछ खुद के इस पे कर. बोला क्या करूं? तो बोले उस टाइम पे that the internet era had just erupted, Mhm. and he gifted me a computer in the year 1984. Hmm. That time no one was knowing. People used to come. My showroom is in Zaveri Bazaar, Mumbai Devi Road, मुंबई. लोग देखने आते थे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि इतना बड़ा सा टीवी होता था, फिर एक दो एसी लगते थे उसके लिए, तो एक कैबिन पूरा बना के रखना पड़ता, तो इट वाज अ म्यूजियम सॉर्ट ऑफ थिंग. Mhm. तो उस Yes. पे लेकिन डैड ने बोला सीखने के लिए मुझे भेजा एक डेटा प्रो करके इंस्टीट्यूट, फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स. उस दिन से जो मुझे एडिक्शन मिला, प्लस पुश मेरे डैड से, डोंट सिट एट वन कॉर्नर. फादर के बिजनेस में तो कोई भी बैठ सकेगा, अपने बलबूते पे कुछ कर. एंड ही आईटी मेरे को मिला उस टाइम पे. I jumped into it, and luckily, after doing my graduation in law, the Information Technology Act came out, and I jumped into that particular field. That's interesting. So Pankaj, it has been your 29 years in legal field. How has the journey been from starting from day one till this date at today, I'll tell Feb you 23rd? frankly, जब मैं इस प्रोफेशन में आया, I was not knowing where the courts are, क्योंकि कभी हमने कोर्ट कचहरी देखी नहीं थी. और उस टाइम पे इट वाज अ रिमार्क ऑन योर गुडविल. अगर कोर्ट गया, एज एन एडवोकेट जाओ, एज अ लिटिगेंट जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो मुंह छुपा के भागना पड़ता था. वो एनवायरमेंट था उस टाइम पे. Yeah. कि कोर्ट में ये क्यों खड़ा है, इसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस होगा. भले मैं कंप्लेनेंट हूं, तो भी मुझे उस एंगल से देखा जाता था. तो आई नेवर यूज टू बी ओवर देयर. Suddenly, when I went to the court, I started from Andheri court. Okay. I was shocked to see the court infrastructure. ज्वेलरी से सडनली एसी एनवायरमेंट छोड़ के मैं जब उधर गया तो बोला ये हालत अगर वकीलों की है तो मुझे प्रैक्टिस नहीं करना. दिस वाज द कंडीशन ओवर देयर. पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड, मजबूरी से या वॉट एवर रीजन. देन द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन आई वेंट इनटू द कोर्ट, मतलब खड़ा रहने की इच्छा नहीं होती थी. बट देन ऑल्सो आई मेड अप माई माइंड कि प्रैक्टिस करना तो यही करना है, ऑप्शन नहीं है. Okay. Then from Andheri court, I started learning the art of advocates, how they represent, how they talk, how they hold their files. That was which I never learned from books. वहां से immediately within a span of 3-4 months, I jumped to the High Court, and here I started my journey. That's interesting. Now let's go on to your journey of cybercrime. How do you approach conducting trials and investigations when your case comes up? तो हम व्यूअर्स को, लिसनर्स को समझना चाहते हैं कि भाई आप किस तरह से वो केस को लेते हैं, किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से उसको जस्टिस दिलाते हैं. सर सबसे पहले वीरेनी साहब ऐसा है कि आज भी हम बोलते हैं कि टेक्नो सेवी है, आज का यूथ
24 घंटे मोबाइल लेके साथ में घूमता है, इंटरनेट एरा है, अगर एक दिन भी इंटरनेट बंद कर दो उनके दिल की धड़कन बंद हो जाए। लेकिन इट्स जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार विदाउट नोइंग वेयर द स्टेपनी इज। मोबाइल सबको चलाने आता है, लेकिन अगर मैं उनको पूछूं कि भाई इनके पास अगर अभी आईफोन है, तो मैं पूछूं आईफोन के अंदर क्या है, तो बस बोलेंगे आईफोन है, बोलेंगे सिक्योरिटी है। अगर मैं बोलूँ अच्छा फीचर नंबर 7 बता दो इसके अंदर का क्या है, तो ही इज ब्लैंक, इट डजंट नो। तो वो हालत है आज की इसमें। तो जब विक्टिम्स मेरे पास आते हैं, ज़्यादा करके फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस होते हैं, वो आते हैं मेरे करोड़ चला गया, अभी आज के दिन में करोड़ ही सुनने आते हैं मुझे, लाखों और वो तो सब पीनट्स हो गया है। एवरेज मेरे पास रोज के 4-5 केसेस आते हैं जिनके 2 करोड़ 3 करोड़ के ऊपर के पैसे चले गए, आइदर लालच की वजह से या उनको उनके अकाउंट शिफनिंग ऑफ बहुत से रीजंस होते हैं। वो जब आते थे उनको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, पहले तो हुआ कैसे। एवरीवन सेज कि नहीं मुझे सब कुछ आता था, उसके बाद भी मैं टारगेट बन गया हूँ, अब मेरा पैसा मिलेगा कैसे। तो फर्स्ट आई हैव टू स्टडी द क्लाइंट कि आपने किया कैसे, आपके पैसे गए कैसे। उसके बाद देन आई हैव टू टेल देम हुम टू अप्रोच, आपको अल्टीमेटली विच एजेंसी को कांटेक्ट करना है, बिकॉज जब तक आप रिपोर्ट नहीं करोगे जेन्यूनिटी कहाँ से आएगी। ये तो चलता फिरता कल आदमी कुछ भी बोल के आ जाएगा कि मेरा पैसा चला गया। तो रिपोर्टिंग से लेके उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, कि आप जब सपोज फॉर एग्जांपल आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो, तो चिल्लाते चिल्लाते जा नहीं सकते हो सर मेरा 5 करोड़ गया 5 करोड़, यू हैव टू गो विद एविडेंस। आप मोबाइल लेके जाते हो कि सर मुझे एसएमएस आया मेरा 2 करोड़ चला गया। अब जब पुलिस बोलेगा कि मोबाइल मुझे दे दो, कोई नहीं देता है, बिकॉज पता है मोबाइल गया तो वापस आएगा नहीं। तो उसके बगैर यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आप मोबाइल के जगह पे आप क्या एविडेंस लेके जाओ जिसको पुलिस को भी हेल्प हो इन्वेस्टिगेशन करने को। 75% पीपल गो अनप्रिपेयर्ड। हम हॉस्पिटल जाते हैं विदाउट पैथोलॉजिकल रिपोर्ट कि सर मुझे डेंगू हो गया मलेरिया हो गया, अरे किसने बताया, बस मेरे को बुखार आ गया डेंगू हो गया। अरे ऐसा नहीं होता है, यू टू गो विद द पैथोलॉजिकल रिपोर्ट। द सेम वे यू टू गो विद द एविडेंसेस। वहां वो फेल हो जाते हैं जिसकी वजह से क्राइम्स रिपोर्ट नहीं होते। पुलिस इज अल्टीमेटली अ ह्यूमन बीइंग, वो आगे लीड कैसे करेंगे। सो दिस आर द लैकुनास जिसकी वजह से देन आई कम इनटू पिक्चर। पीपल कम टू मी, दे हायर माय सर्विसेज, आई फ्रेम देम इन अ प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ। कहाँ पे कौन से कोर्ट में अपने को जाना है, कौन से ट्रिब्यूनल में जाना है, कौन से एनफोर्समेंट एजेंसी के पास जाना है, प्लस ट्राइंग टू ट्रेस द कल्प्रिट कि पैसा किधर गया आपका, पहली बात तो ये सारी चीजें करके देन आई हेल्प देम टू रिकवर द मनी और गेट देम जस्टिस। That's interesting. So people who are listening, डॉक्टर के पास जाओ या लॉयर के पास जाओ या पुलिस के पास जा रहे हो, एविडेंस के साथ जाना है तो ही आपको जस्टिस मिलेगा, तो ही उसको आगे बढ़ सकेंगे। दिस इज वंडरफुल एडवाइस कि कौन से फॉर्म में एविडेंस। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो रिपोर्ट्स लेके जाने का, वो भी लेटेस्ट वाले। पुराने रिपोर्ट्स लेके जाएंगे तो डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाएगा और आपको रॉन्ग ट्रीटमेंट कराएगा और फिर आप डॉक्टर को ब्लेम करेंगे भाई क्या हो गया। सेम थिंग इन साइबर क्राइम भी या जो भी होता है, यू हैव टू गिव देम द लेटेस्ट एविडेंस कि भाई मेरे साथ ये हुआ। आप 2 साल वाला प्रूफ दिखाएंगे कि भाई मेरे को ये हुआ था, तो पुलिस भी पूरा परेशान हो जाएगा, लॉयर भी परेशान हो जाएगा। तो ये रहता है। सो लेट्स कंटिन्यू कॉन्वर्सेशन। अभी ये तो क्राइम हो गया, कम टू साइबर लॉ। सो व्हाट साइबर लॉ में व्हाट इज द प्रोटेक्शन, या किस तरह से द लॉ इज हेल्पिंग द विक्टिम्स एंड हाउ डू यू प्ले द रोल ऑफ अ लीगल प्रोफेशनल? सर सबसे पहले ये बहुत दुख की बात है कि एट प्रेजेंट अपने कंट्री में कोई ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं है। बिकॉज जब लॉ बना था तभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये साइबर क्राइम होगा। कंप्यूटर्स आया था तो इट वाज अ बून फॉर अस, हमें ऐसा लगा था भगवान का वरदान आया कंप्यूटर जब आया तभी। और जब कंप्यूटर आया 90s में कंप्यूटर्स इंडिया के अंदर एंटर हुए थे, उसके बाद बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर व्हेन द इंटरनेट एरा स्टार्टेड, तो दे वांटेड सम लॉ कि लॉ नहीं होगा हम आपको इंटरनेट वर्ल्ड में नहीं लेके जा सकते थे। तो इमीडिएटली इंडिया हैड टू अडॉप्ट अ लॉ व्हिच वाज जस्ट कट कॉपी पेस्ट बना दिया गया। लेकिन वो भी इस तरीके से बनाया, इंटरनेट चाहिए इसके लिए, कि भी सोचा नहीं था कि ये क्राइम हो जाएगा, इसके अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। उसको समझने को 8 साल लगे। 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। yes, yes. 2008 में फिर उसको अमेंडमेंट करके उसके अंदर क्रिमिनल पनिशमेंट्स एंड ऑफेंसेस एनक्लब किया गया, बिकॉज इरप्ट हो गया। और 2008 से लेके अब तक देयर इज नो अमेंडमेंट। हम जिस लेवल के क्राइम के अंदर जा रहे हैं, आज भी गवर्नमेंट डेली उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रही है, स्टडी कर रही है, लॉज अमेंड करते जा रही है। सोशल मीडिया आ गया, पहले नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि आज के 15 साल पहले के फेसबुक करके कोई आएगा भी, ट्विटर करके कुछ आ जाएगा। आज ट्विटर दुनिया हिला लेता है, तो सोचा नहीं था किसी ने भी, और सडनली आ जाता है। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इमेजिंग चेंजेस इन द लॉ। तो 2008 में अमेंडमेंट होने के बाद
नाउ द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद द डिजिटल इंडिया एक्ट, जो immediately mostly after the elections it may come up into enforcement and all. तो चेंजेस है, फ्यूचरिस्टिक क्राइम्स को देखा गया है कि अभी यार 20 साल बाद कौन से क्राइम आएंगे, उसको पहले से ही लॉ में डाल दो. तो प्रॉब्लम्स है, लॉ है, क्रिमिनल्स को भी पता है लॉज आर नॉट स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसका फायदा उठाते हो. सेकेंडली, रिपोर्टर्स जो होते हैं हार्डली 1% लोग कंप्लेंट करते हैं, 99% करते नहीं, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं उनकी वीक पॉइंट्स होती है. स्पेसिफिकली द कॉर्पोरेट वर्ल्ड नेवर कंप्लेंट्स. कॉर्पोरेट्स आर द ह्यूज टारगेटेड. इंडिविजुअल को, क्रिमिनल्स को कोई टारगेट करने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड को टारगेट करना है, इंडस्ट्रीज को टारगेट करना है. लेकिन कॉर्पोरेट क्या कहता है, नहीं मैं अगर कंप्लेंट करने जाऊंगा तो मेरा गुडविल बाहर खराब हो जाएगा, आई डोंट हैव सिक्योरिटीज, जिसकी वजह से मे बी माई स्टॉक मार्केट प्राइसेस में फॉल डाउन, द गवर्नमेंट रेगुलेशंस में कम अप, अनरिपोर्टेड होते हैं, जिसकी वजह से क्रिमिनल्स आर बूस्टिंग अप. where I request everyone, if you are affected, प्लीज कम एंड रिपोर्ट. जैसे कोविड हुआ था, लोग छुपाते थे कि मुझे कोविड हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे एड्स हो गया, छुपाते थे. वैसा नहीं होना है. साइबर क्राइम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोविड, वैसा ही स्प्रेड हो रहा है. कम आउट, रिपोर्ट. जब तक रिपोर्ट नहीं करोगे लोगों को कैसे पता चलेगा ये भी क्राइम हो रहा है. लेकिन इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. मैं विक्टिम बन गया तो क्या हो गया, क्या मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है. मेरे बैंक अकाउंट से अगर पैसे चले गए तो मैंने थोड़ी बांटे. तो अगर मैं 10 लोगों को बोलूंगा तो उसमें से एक आदमी ने भी अगर वो प्रिकॉशन ले लिया तो माय ड्यूटी इज ओवर. दिस इज वेयर द लॉज. Very true. So now coming to law ho gaya. Now coming to the part of police and the enforcement agencies, how knowledgeable they are and how support they be to the legal professionals as well as to the victims. सर आई टेल यू, इफ यू वांट टू एंटर इनटू एनी बिल्डिंग, भले वो मंत्रालय हो, पार्लियामेंट हाउस हो या अपने घर में हो, वॉचमैन को सलाम किए बगैर आप जा नहीं सकते. सिंपल. ही इज द पर्सन हु विल सिक्योर यू. भले वो आप हाई सोसाइटी में रहते हो या 10 माले की बिल्डिंग में रहते हो, द सिक्योरिटी वॉचमैन. वैसे दैट इज आवर पुलिस डिपार्टमेंट. सबसे पहला विक्टिम या अफेक्टेड पर्सन का दरवाजा जो नॉक होता है, दैट इज द पुलिस स्टेशन. पुलिस पे जो भरोसा है वो किसी पे भी नहीं है. कुछ भी हुआ हम पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं. हस्बैंड वाइफ का झगड़ा भी हुआ तो मैं पुलिस बुलाऊंगा. किसी का भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ मैं पुलिस बुलाऊंगा, बिकॉज एक वो ट्रस्ट है. Yes. और प्लस बीइंग अ पुलिस फैकल्टी, मैं जिस एंथुजियाज्म और जो लगन से पुलिस को देख रहा हूँ, सीख रहे, द वे दे आर अपग्रेडिंग देमसेल्फ इन स्पाइट ऑफ लैंग्विस्टिक बैरियर. इंडिया के अंदर बहुत से लैंग्वेजेस है, अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस. उनके बावजूद, बिकॉज साइबर इज अ इंग्लिश डोमिनेटेड लैंग्वेज, आप कहीं पे भी देखो तो इंटरमीडिएट जो कंपनीज है दे ऑल ओवरसीज, सब इंग्लिश मीडियम फॉलो करते हैं. तो इन लोगों को वो फॉलो करना डिफिकल्ट हो रहा है. टेक्नोलॉजी विच इज ऑफ द यंगस्टर्स, लेकिन जो पुलिस फोर्स में अगर आप देखेंगे 40+ जो इन रैंकिंग ऑफिसर्स है वो सब 40+ है. उनको सीखने में तकलीफ होती है, बट उनके ईगरनेस होती है. प्लस द गवर्नमेंट की ट्रेनिंग्स कंटिन्यूसली, उन लोगों को एवरी वीक ट्रेनिंग दिया जाता है. यंगस्टर्स को अभी भर्ती की जा रही है पुलिस फोर्स में, हु कैन अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी वेरी फास्ट. Plus now the new admissions are coming up where tech and law both have to be present if you want to come into the force. You have to be BE electronics and law together. Then you will be coming into the police force for a cyber investigation officer, because he can understand the technology. So these are the changes which are coming up in the police force. So coming to your side, keeping abreast of the technology things happening and the crimes, because now technology is everywhere, AI, all those things. How you keep abreast of the changes and what kind of technology do you use for your law firm? See, I'll tell you, मैं खुद के लॉ, मेरे खुद के फर्म के लिए मैं कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता एक्सेप्ट अ कंप्यूटर, बिकॉज आई फाइंड माई सेल्फ, माई ब्रेन इज माई टेक्नोलॉजी. अल्टीमेटली ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट शुड बी देयर. हम मशीन्स पे डिपेंड नहीं हो सकते. चैट जीपीटी ने हमारे बहुत से लीगल फ्रेटर्निटी पीपल को आलसू बना दिया है. हर चीज़ हो गया रेडीमेड, ये कर दो. वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है. ठीक है, आप एक नोटिस भेजने में आप उसकी हेल्प ले सकते हो ड्राफ्टिंग करने पर, लेकिन जब कोर्ट में आपको अपना मुंह खोलना है, यू हैव टू प्रेजेंट योर केस, वहां आपका प्रेजेंट डॉक्यूमेंट नहीं काम आएगा. वहां योर एक्सपर्टीज, योर एक्सप्रेशन, योर नॉलेज अबाउट द लॉ, वो आपको सामने काम आएगा. योर ओरल सबमिशन बिफोर द कोर्ट, वो काम आएगा. वो चैट जीपीटी रिप्लेस नहीं कर सकता है. तो आई डोंट यूज दिस टेक्नोलॉजी, आई जस्ट यूज कंप्यूटर एज ए टूल. पढ़ो, जजमेंट के लिए इंटरनेट है, उतना निकाल लो, बाकी अपना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट डालो. बिकॉज चाइना के अंदर, चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट अप
पुट अप रॉबर्ट एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पे इन बीजिंग. जितने केसेस थे सब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जीत रहा था, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ रॉबर्ट. एक साथ में 50,000 जजमेंट उनके इसमें फीड कर दिए गए, तो ऑब्वियसली ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट में एक ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 जजमेंट दे सकूंगा, लेकिन वो मेरा ओपोनेंट हु इज अ मशीन, वो एक साथ में इतने सारे जजमेंट, द जज आल्सो स्टार्टेड गेटिंग कंफ्यूजिंग, मैं Yes. कौन से इस पे रिलाई करूं. Yes. तो अल्टीमेटली फाइनली दे डिसरिगार्डेड, दे कैंसल दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के सॉरी, लिटिगेशन लीगल इसमें रोबोटिक्स कैनॉट एंटर, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिप्लेस गिव रॉन्ग जजमेंट्स. देन यूएसए में भी वैसे ही हुआ था, चैट जीपीटी यूज करके लॉयर्स ने एक पेटिशन प्रेजेंट कर दिया. Yes. जो जब जज ने क्वेश्चन पूछा उनको, तो उनको पता नहीं था कि ये दिस वाज नॉट द पेटिशन व्हिच वाज टू बी प्रेजेंटेड. Yes. जज ने इमीडिएटली पूछा ये आपने कहाँ चलाया, बोल द चैट जीपीटी. दे वर सस्पेंडेड फ्रॉम द बार एंड पेनलाइज्ड कि आप मेरे सामने आ रहे हो, होमवर्क करके नहीं आ रहे हो, आप मशीन से लेके आ रहे हो. सो टेक्नोलॉजी कैन नॉट डू एवरीथिंग. हाँ, यू कैन यूज एज अ टूल, Yes. बट नॉट एज अ फुल रेमेडी. Very true. Very true. So everything as a we evolve, there are support systems are there, but पूरा उसको adopt नहीं कर लेने का कि life अपनी क्या रहेंगे, we become crippled. And dependency ने वो सब नहीं लाने का है. So as we say, use it as a support tool, and nothing can replace human beings anywhere in the world. ये तो that's why we are human beings are the king of creation. Yes. इसलिए बोलने में आया है. So let's continue our conversation, Pankaj. Some complex cases you have come across. Can you say some examples? कॉर्पोरेट केसेस मतलब Complex. Okay. Cyber crime. Okay. Complex. मेरे लिए every day there are complex cases because average I get around 10 to 12 complaints per day. Who are dissatisfied with the law enforcement agency, they come directly to me, and I get to learn every day something new is happening. बहुत से केसेस होते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने लोग पढ़ते होंगे 30,000 चला गया, 50,000 चला गया, ओटीपी शेयर किया. लेकिन ऐसे बहुत से केसेस है जहाँ पे कोई ओटीपी शेयर नहीं होता है. आप रात को सोए हुए हो, सडनली सुबह में आप देखते हो तो आपका सिम कार्ड बंद कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं सिम क्लोनिंग केसेस. आपके सिम कार्ड बंद हो जाते हैं, कोई तीसरा पर्सन एक्टिवेट करता है, आपके ओटीपी वहां चले जाते हैं, ही एंटर्स योर क्रीडेंशियल्स, आपके पैसे स्वाइप हो जाता है. आई एम हैंडलिंग अ वेरी फेमस केस जहाँ मिस्ड कॉल से आप 2 करोड़ रुपए चले गए. जस्ट मिस्ड कॉल आए, 5 इंटरनेशनल मिस्ड कॉल्स, उसने उसको कॉल बैक किया, और जैसे ही कॉल बैक कर दिया उसका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो गया और उसके अकाउंट में से 2 करोड़ चले गए. फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक और फेमस केस है विच इज रजिस्टर्ड इन मुंबई ओनली, जिसे ऑनलाइन स्टॉकिंग कहते हैं, कि वेयर अ गर्ल ऑफ अराउंड 29 ईयर्स ओल्ड, वो जो सोचती है वो उसके फेसबुक टाइमलाइन पे आ जाता है, व्हाट्सएप के ऊपर उसको वही मैसेजेस आता है जो वो सोचती है. नाउ रिसेंटली जस्ट 3 days बैक एलन मस्क हैज इन्वेंटेड एक नया चिप इन्वेंट किया है जो आप ब्रेन में सर्जरी करके डाल दो. I think that I want to meet Mr. Amir Virani, and immediately Amir Virani will call me up. Or else I will computer, I will be getting Amir Virani on my computer over there. So this is where technology has been gone, which is not the reality. Artificial दुनिया है, but reality हो रहा है. और भी केसेस है जहाँ पे मॉनेटरी फ्रॉड से लेके आप किसी का जैसे फोन क्लिपिंग्स बन जाती है, सेक्सटॉर्शन केसेस हो रहे हैं, अभी डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं. अभी रिसेंटली एक हमारे एक एडवोकेट का ही वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, उसका वीडियो उतरा है जिसके अंदर रॉन्ग सबमिशन कोर्ट के सामने दे रहा है, वो कोर्ट को बैड वर्ड्स दे रहा है, वैसा वीडियो बाहर आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल. वी कैन नॉट बिलीव कि कोई एक एडवोकेट जज को गालियां दे रहा है ओपन कोर्ट में और कोई उसका रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन सर्कुलेशन होने का पीपल बिलीव व्हाट दे सी. Yes, very true. Which is a defamatory thing for them. They don't apply their mind के कोर्ट के अंदर पहली बात है रिकॉर्डिंग अलाउड ही नहीं है, तो ये रिकॉर्डिंग आया कहाँ से वहां से. सो द फैक्ट्स हैज टू बी वेरीफाइड. Yes. ये वेरीफाई किए बगैर हम सोशल मीडिया के जमाने में जा रहे हैं, विच इज हार्मफुल ऑल्सो. सो ऐसे बहुत से केसेस डे बाय डे. रोबोटिक एरा आ रहा है अभी रिसेंटली, वेयर रोबोट्स आर रिप्लेसिंग द ह्यूमन बींग्स. मेड्स ऑलरेडी इंडिया के अंदर आ चुके हैं, वेयर ड्राइवरलेस कार्स के लिए टेस्ला को अभी तक स्टॉप किया गया है, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ कंट्री मेड फॉर दैट. अगर टेस्ला रोड पे आ गई तो मुझे लगता है एवरी सेकंड देयर विल बी एन एक्सीडेंट, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट. तो बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ये सब आज नहीं तो कल आएगा. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अभी कॉम्प्लेक्स से आते सम ह्यूमरस केसेस कि जहाँ पे कोई केस लेके आए, बट देयर मस्ट बी सम ह्यूमर, देयर वाज सम फनी थिंग. बहुत से केसेस है, जैसे मैंने बताया स्टॉकिंग का जो है, मेरे पास एक सीनियर सिटीजन का केस है, 77 ईयर ओल्ड.
वो मतलब ऑलमोस्ट 4-5 साल से आई एम जस्ट कंसोलिंग हर बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन, मैं करूँ क्या उनके साथ में। उनको सडनली रूम के अंदर शेडोज दिखते हैं भागते हुए, कोई आके उसको गला दबाता हुआ उसको वो दिखता है, उसके टीवी चालू हो जाता है अपने आप, उसको अपने ही मोबाइल नंबर से उसको कॉल आता है, विच इज अ रियलिटी, इट इज वेरीफाइड बाय द पुलिस। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से साइंटिस्ट भी गए उसके घर पे, उन वो लोग भी रात भर रुक के दे हैव विटनेस्ड ये हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है, उनके इसमें कोई गैजेट नहीं है, कोई राउटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मोबाइल भी वो सादा 2,500 का मोबाइल है। अब वो इस तरीके से हो गया, पुलिस बोलते हैं कि सर ये क्या है, मौला सर मुझे भी नहीं पता, अब मैं इसमें क्या रेमेडी दूं, एक ही दे सकता हूँ। वो आंटी को मैं कंसोल करते थे, आंटी डोंट Yes. वरी, हम पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे, और किसको पकड़ेंगे लेकिन पता नहीं। और ये आज ही नहीं, कोल्हापुर से भी मुझे ऐसा एक केस आया है जहाँ पे उनको शेडोज दिखते हैं, हमें लगता है कि हमारा ह्यूमिलेशन है कि भाई थॉट प्रोसेस होगा, लेकिन एक को दिखे, सबको नहीं दिखना चाहिए। तो ये कुछ ना कुछ है विच इज बियॉन्ड माई थॉट्स ऑल्सो। ये वक्त के हिसाब से पता चलेगा, ये टेक्नोलॉजी है जस्ट अ मिथ। Or supernatural. या मे बी Anything can happen. Yeah. Yeah, any builder. या We don't know. But uh, coming back, new hacking trends being followed by hackers. पहले और अभी में क्या फर्क आया है? पहले क्या होता था, हैकर्स को आपका सोशल बिहेवियर समझना पड़ता था, आपके गैजेट्स हाथ में लेने पड़ते थे, कहीं ना कहीं फिजिकल एक्सेस लगता था। अब वो जमाना गया। मुझे सिंपल फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आमिर वीरानी साहब को का मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मैं खाली फेसबुक पे उनको स्टडी कर लूंगा, लिंक्डइन पे उनका प्रोफाइल पढ़ लूंगा, गूगल पे उनका थोड़ा डिटेल निकाल दूंगा, पता चल रहा है कि वो ज़्यादा आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। तो अच्छा, तो ठीक है, तो उनको मैं कोई ईमेल भेज दूंगा कि यहाँ पे कोई इन्फोटेक शो हो रहा है, यू हैव बिन इनवाइटेड, पार्टिसिपेशन है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। मिस्टर वीरानी विदाउट थिंकिंग, ओ इन्फोटेक का है, क्लिक कर देंगे, और जैसे ही क्लिक हो गया इनका सिस्टम क्रैश, मैं उनके सिस्टम के अंदर आके बैठ गया, मेरा वायरस मेलवेयर आके बैठ गया, एंड देन आई फॉलो हिज फुट स्टेप्स, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, वो जो कुछ भी करते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन वॉट एवर इट इज, इट कम्स टू माई नोट पैड, Very true. और देन आई स्टार्ट ब्लैकमेलिंग यू। तो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा सेक्सटॉर्शन के हुए, पीपल यूज टू विजिट पोर्नोग्राफिक साइट्स, तो जब वो विजिट करते थे उनको नहीं पता कि उनके सिस्टम में मेलवेयर है। सडनली आफ्टर 4 मंथ्स 3 मंथ्स उनको एक ईमेल आता है कि फॉर एग्जांपल का मिस्टर बाफना, इस तारीख को आपने ये वेबसाइट देखी, इस तारीख को आपने ये देखा, ये वीडियो डाउनलोड किया था, आपका यूजर नेम पासवर्ड ये है ईमेल आईडी का। तो मैं डरना शुरू हो जाता, बिकॉज मेरे यूजर नेम पासवर्ड सामने लोगों को कैसे पता। एंड देन ही ब्लैकमेल्स मी कि ये सारे वीडियोज और लॉग्स मैं आपके रिलेटिव्स, व्हाट्सएप, वाइफ, सबको भेजने वाला हूँ, पे मी दिस मच ऑयल्स, फेस द ट्रिम्पट। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे जो डरावनी है। A lot more to learn, to know. Let's come to ये है कि tips for safety measures to be followed by common man. आपके हिसाब से क्या सेफ्टी मेजर्स सेफ्टी मेजर्स है कि देखिए, किसी की भी ताकत नहीं है आपके घर के अंदर घुसे अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम वल्नरेबिलिटी। जैसे अगर दरवाजा, अगर आपका प्रॉपर सील है, किसी की ताकत नहीं है घुसेगा। अगर आपका दरवाजा, खिड़कियां बराबर बंद है, लेकिन कहाँ पे भी अगर थोड़ी सी भी खिड़की खुली होगी तो कोई ना कोई घुस सकेगा। वैसे ही सेम आपका टेक्नोलॉजी है, अगर आपके मोबाइल के अंदर या आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर आपने कोई ऐसी चीज़ डाउनलोड की है जो थर्ड पार्टी एक्सेस को परमिशन देता है, हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं, सबको पता है कि हमको सब परमिशन अग्री करना पड़ता है। अगर ऐप डाउनलोड करना है तो मुझे सब अग्री करना पड़ता है। हमें सबको पता है कि ये अग्री करने के बाद मुझे नुकसान होगा, फिर भी हम अग्री करते हैं बिकॉज हमें उस ऐप की ज़रूरत है। हमें उतना नहीं समझते कि इस ऐप की ज़रूरत कितनी है, उतना ही करो। अगर आपका ज़रूरत हो गया, अनइंस्टॉल कर दो, ख़त्म करो, बट आप उधर ही रखोगे। अगर शॉपिंग करना है, ई कॉमर्स, तो हम एक से सेटिस्फाइड नहीं, हम 5-5 ई कॉमर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर देंगे। वॉलेट्स यूज़ करना है, हम एक वॉलेट यूज़ नहीं करेंगे कि फॉर एग्जांपल पेटीएम या जीपे करना है, नहीं नहीं नहीं, मैं भारत पे भी डाक रखूंगा, ये भी क्यों, 10 रुपया रिवॉर्ड है, 20 रुपीज़ कैशबैक है, और लालच का कोई अंत नहीं होता है, जिसकी वजह से देन वी गेट कॉम्प्रोमाइज्ड और हमें फेस कर। तो डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और अपने सोशल मीडिया को अलग रखो। वेरी ट्रू। आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल, मेरे मोर देन 1000 सेमिनार्स हो चुके हैं, मैं सबको बोलता हूँ 2 मोबाइल रखो। ऐसे भी 2 सिम कार्ड्स होते हैं आज के तारीख, 2 मोबाइल रखो, जिसमें एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने वाला वो एक छोटा सा हैंडसेट रखो। डोंट कीप अ स्मार्टफोन, उसके अंदर ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करो, नथिंग एल्स। आपको जब, एंड डोंट गेट इन एक्सेस टू योर वाईफाई,
घर के वाईफाई को भी कनेक्ट नहीं करना है। आपको ट्रांजेक्शन करना है, डेटा प्लान ऑन करो, ट्रांजेक्शन करो, डेटा प्लान ऑफ कर दो, मोबाइल साइड में रख दो। सोशल मीडिया के लिए एक अलग से स्मार्टफोन ले लो, फेसबुक जो भी आपको उसके अंदर डालना है डालो। दोनों अगर कंबाइंड हो गए तो सपोज अगर आपका सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपका फोन कॉम्प्रोमाइज्ड है, दे विल गेट एक्सेस टू योर बैंकिंग एंड देन पैसे जाते हैं। 99% वैसा ही होता है। तो आई सजेस्ट अलग रखो दोनों को, मिक्स मत करो। कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके अपने पर्सनल थिंग्स एक्सेस मत करो। किसी के भी घर में जाते हो उसका वाईफाई मत लो, लालच, कुछ फर्क नहीं। आज की तारीख में अनलिमिटेड प्लान है, 250 रुपये में आपको अनलिमिटेड प्लान मिलता है, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन ट्रेंड है, अरे तेरा वाईफाई पासवर्ड दे दे। हमें पता नहीं है भैया उसका राउटर कितना सिक्योर्ड है, हम ले लेते हैं। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, वाईफाई का पासवर्ड मांगते हैं। ये ग्रीडीनेस है। तो ये ग्रीडीनेस से बाहर नहीं आओगे तो कोई और आपको लेके जाएगा। वेरी ट्रू, ह्यूमन नेचर कहानी है बहुत सारे। Now coming to government, RBI is taking initiative to educate about cyber crimes. What more is needed to prevent cyber frauds? सी आई अग्री, आरबीआई बहुत सी एडवर्टीजमेंट करती है बट प्रैक्टिकलिटी नहीं है। एडवर्टीजमेंट तक ही रह गए हैं। बिकॉज आई फेस प्रॉब्लम्स। आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एजेंसीज, वो उनके लेवल तक कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कॉमन मैन तक नहीं है वो। जब हम कोई जैसे ओम्बड्समैन पे चले जाओ, 3 दिन के अंदर अगर आपको पता चल गया तो देयर इज अ कूलिंग पीरियड ऑफ 3 days, क्या 36 घंटे के अंदर बैंक आपको वापस क्रेडिट दे देगी। बैंक्स आर ऑल्सो प्लेइंग विद दोज टर्मिनोलॉजी कि 3 दिन तक क्रेडिट देना ना, ओके 3 दिन तक शेडो क्रेडिट देते, चौथे दिन वापस डेबिट कर देते। और ये आप क्लियरिटी क्यों नहीं देते हो? अब जो कोई भी अगर रूल्स बना रहे हो, क्लॉजेस बना रहे हो, क्लैरिटी दो, गिव सम प्रॉपर गाइडेंस टू द बैंकर्स ऑल्सो कि भाई शेडो क्रेडिट दे दिया, आप डायरेक्टली डेबिट वापस नहीं कर सकते। शेडो क्रेडिट का मीनिंग ये नहीं होगा अकाउंट होल्डर यूज कर सकता है, इट इज जस्ट शोइंग क्रेडिट इन योर अकाउंट कि उसका जो पैसा गया वो आ गया वापस। ट्रायल खत्म होने के बाद या इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद इफ इट इज प्रूव कि थर्ड पार्टी एनकरेजमेंट हुआ है, कुछ हुआ है, वो पैसा आपको यूज करने मिलता है। लेकिन आप वापस डेबिट कर देते हो तो आरबीआई तक वापस नहीं जाता। हम जब ओम्बड्समैन में जाते हैं, आरबीआई टेक्स 30 days के बाद सडनली एक ईमेल आ जाता है, सॉरी योर फाइल इज क्लोज एंड यू कैन नॉट गो इनटू अपील। ये कहाँ का न्याय है? अपील में जाने का सबका हक होता है, लेकिन आरबीआई को कोई अपीलेट सिस्टम ही नहीं है। बहुत से कम लोगों को फिर अलाउ करते हैं, तो वहां मार खाते हैं। और ये सारे क्रिमिनल्स को पता है, उनको पता है सोल्यूशन नहीं है, मरने दो लोगों को। हम टारगेट करेंगे, उसमें से एक को इंसाफ मिलेगा, 99 हमारे पास है। सो दिस इज वेयर द गवर्नमेंट हैज टू बी सीरियस इनफ। उनको लग रहा है कि बस ये बहुत छोटी मोटी चीज है, नहीं। 21-22 का एनालिसिस है, आरबीआई का खुद का डिक्लेरेशन है, अराउंड 1,07,000 crores have been siphoned off in 1 year by the cyber criminals. आप उस क्वांटम को देखिए। हम एक 4,000 करोड़ को खा के भागता तो उसके पीछे पूरी फोर्स लगा देते, इधर 1,00,000 करोड़ जा रहे और डिक्लेयर्ड है। आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, अनरजिस्टर्ड अनडिक्लेयर्ड, तो कितना पैसा जा रहा है। वहां सीरियसनेस नहीं है। आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, प्लीज बी सीरियस। आपका पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन कॉमन मैन का पैसा जा रहा है। अल्टीमेटली इट इज अ गवर्नमेंट ओनली। प्लस नाम खराब हो रहा है कि व्हाट सिक्योरिटी इंडिया हैज। सो दिस इज वेयर सम recommendations and drastic changes are required. Very true. Everyone from the common man to government, including legal fraternity, has to work towards क्या बोलते हैं, better society. So continue conversation, Pankaj. How do you stay updated with latest developments in cyber law and cybercrime and technology? This is a question which everyone asks me. बिकॉज मेरा ऐसा होता है कि आई गिव माई 2 hours पर डे एवरी डे इन रिसर्च। मैं कोई भी सेमिनार्स नहीं छोड़ता हूँ, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, कॉन्क्लेव्स होते हैं, जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ आई गो टू द पेड वर्जन्स। फ्री वर्जन्स में भी जाता नहीं हूँ, क्योंकि फ्री वर्जन्स जस्ट एक नाम के लिए किया जाता है। पेड वर्जन्स में जाते हैं वी गेट द वैल्यू ऑफ मनी। प्लस दूसरों को सुनने की एक आदत हमें होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हमें जो आता है वो सबको आता है। तो प्लस रिसर्च, आज इंटरनेशनली में भी आई हैव सब्सक्राइब टू एम्पल ऑफ मैगजीन्स, एम्पल ऑफ ग्रुप्स, जहाँ पे कौन क्या टॉक दे रहा है, क्या रिसर्च हो रहा है। आई एम ऑलरेडी फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट, आई एम फॉलोइंग मार्क, फेसबुक, जो उन लोग लेटेस्ट डेवलपमेंट करते थे, पुट इट ऑन देयर वेबसाइट। दे हैव आर्टिकल्स, दे हैव देयर ओन पॉडकास्ट। उनको सुनने से अपने को पता चलता है कि ये आगे ये आने वाला है। प्लस आपको सोर्स कोडिंग सीखना है, मतलब आई एम नॉट टेलिंग दैट बिकम अ प्रोग्रामर। आपको सोर्स कोडिंग से पता चलता है कि एग्जैक्टली व्हाट लैंग्वेज इज कमिंग आउट, आप किस एरा में हम जाने वाले हैं।
इंडिया किस लेवल पे है अभी तक, उसी हिसाब से वी डेवलप्ड आवरसेल्फ। प्लस लॉज, खाली इंडिया का लॉ जानने से कुछ नहीं होता, बिकॉज दिस इज द इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन। आई हैव टू स्टडी यूएस लॉज, जर्मनी लॉज, यूके लॉज, एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल डेटा प्राइवेसी है, डेटा प्राइवेसी इज इन एवरी कंट्री, लेकिन जरूरी नहीं है मेरा डीपीडीपी एक्ट उधर चलेगा, जीडीपीआर मेरे इंडिया में चलेगा। नो, इट इज फॉर द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। लेकिन कल मैं अगर वहां पे गया और वहां पे मैं अफेक्टेड हो गया, देन आई शुड नो द लॉ ऑफ दैट कंट्री। So that's why, and as a legal representative, I should know the laws of every country. Very true. This is where I keep myself updated. So, who's the role model in cyber law? Yeah, cyber related to cyber crime. Gives you inspiration? Ma Saraswati. No one else. I'm sorry to say, I don't have any role model. I don't have any guru. मैंने खुद ने अपने सेल्फ लर्निंग से सीखा है, और सरस्वती माँ का आशीर्वाद है कि बस मैं पढ़ता हूँ, मुझे ग्रास्प हो जाता है, मैं मेमोरी में रह जाता है। आशीर्वाद जो है वो है। We respect. So let's continue. You have been a visiting faculty at various law colleges like Praveen Gandhi, then University of Mumbai, other colleges. So during your lectures for students, what do you focus and inspire them? See, I'm a faculty for post graduate diploma in cyber law. मैं जहाँ पे भी जब मैं जाता हूँ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स से होता है, व्हाई डू यू वांट टू डू साइबर लॉ? एंड उसके अंदर 78 to 90% आर लॉ ग्रेजुएट्स और लॉ स्टूडेंट्स वो आते हैं। रिमेनिंग जो होते हैं वो आइदर डिफेंस से होते हैं या फ्रॉम द पुलिस फोर्स। पहला क्वेश्चन होता है, क्यों सीख रहे हो? आपने ऑलरेडी लॉ कर चुके हो, और सीखने के बाद भी आप इसको कैसे यूटिलाइज करें? आर यू गोइंग टू कम इनटू प्रैक्टिस? That time everyone says yes. I would have trained more than 1,000 people, but अब तक I am sorry to say no one is there into this practicality, because practical fields में बहुत तकलीफ होती है, साइबर केसेस डिटेक्ट करने में तकलीफ होती है, उनको सारा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। स्टूडेंट्स को मैं उसी हिसाब से कि खाली सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्स मत करना, सर्टिफिकेशन चाहिए आपको, ऑनलाइन भी मिल जाता है, 250 रुपये में, 500 रुपये में मिल जाता है। लेकिन रियली में नॉलेज लेना है, अटेंड द क्लासेस प्रॉपरली, कीप ऑन डूइंग योर होमवर्क्स, दिन का एटलीस्ट हाफ एन आवर गिव टू दैट सब्जेक्ट, जाके 4 लोगों के साथ में अपना नॉलेज शेयर करो, बिकम अ स्पीकर। आप 4 से स्टार्ट करोगे, 10 होंगे, 40 होंगे, 500 होंगे। इसी तरीके से व्हेन यू बिकम अ स्पीकर, यू ऑटोमेटिकली गेट कॉन्फिडेंस, यू रिसर्च मोर इनटू दैट सब्जेक्ट, रादर देन जस्ट लर्निंग ऑन द बुक्स। बोलना सीखो, और जब लोग सुनने की आदत लग देंगे आपके पास, अगर आज 2 लोग हैं, कल 4 हो गए, 8 लोग हो गए, 10, दैट मीन्स यू शुड हैव कॉन्फिडेंट कि नहीं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। योर सब्जेक्ट इज दैट कि पीपल लाइक इट, एंड देन यू विल जंप इनटू दिस प्रैक्टिस। Beautiful tips you have shared to young legal professionals, cyber law. This tip is very valuable. Listen to this tip in the Coffee Conversation show on YouTube. So my last question for your professional journey round: what are the key skills and qualities required to succeed in the field of cyber law? आपके हिसाब से? The qualities is your grasping power, your eagerness to learn. सिंपल, नॉट नेसेसरी योर डिग्री बहुत लोगों के पास है, लेकिन नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है। अगर आप हैकर्स लोगों को आप देखेंगे, इफ यू सी अ रियल हैकर, दे आर नॉट इवन 12th और ग्रेजुएट्स, दे आर जस्ट 10th पास एंड 11th पास। उनके पास नॉलेज है, डिग्री नहीं है। और ऐसे भी लोग देखेंगे जो जिनके पास डिग्री है लेकिन नॉलेज जीरो है। सो यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज, तब आपकी कंपैरेटिबिलिटी होती है, आपकी एग्जिस्टेंस सोसाइटी में रिक्वायरमेंट होती है। साइबर ऐसी फील्ड है जो कोई खाली एक बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बिकॉज दैट इज द आउटडेटेड थिंग विच इज प्रिंटेड इन द बुक। ये रोज डेवलपमेंट होता है, एवरी सेकेंड वी सी टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड वाया द। बहुत सी अच्छी चीज मिली हमें इंटरनेट, गूगल पे ये सब चीजें देखो, दूसरी चीजों से ज्यादा टाइम पास कम करो। सोशल मीडिया गिव देम अ स्मॉल टोकन, छोटा सा टाइम दो, ज्यादा करके रिसर्च में ये करो, तो आप साइबर लॉ में सक्सेस हो जाएंगे। एंड आई एम सॉरी टू से, आज भी जो इंडिया के अंदर वेल नोन एंड साइबर प्रैक्टिशनर्स दे आर ऑल 50+। आप सोचो, टेक्नोलॉजी 50 के नीचे वालों की है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स है वो सब 50+ है। क्यों? बिकॉज उनमें वो मोटिवेशन है, कुछ करना है, और जो दूसरे उससे कम एज के वर्ग है उनको लग रहा है कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है।
Very true. So this was the end of the professional journey. We go to the next round, that is the personal journey round. So, Pankaj, from your family, who has inspired you throughout your life? माई इंस्पिरेशन इज माई डैड ऑब्वियसली. वो लात नहीं मारते तो मैं वहीं बैठा रहता था. आज भी ज्वेलरी बेचता था. आइए बहन जी, पगड़ी लीजिए, चूड़ी लीजिए, ये लीजिए. काउंटर सेल्स पसंद करता रहता था. माई डैड ऑलवेज यूज टू किक मी आउट, जाओ बाहर जाओ, दुनिया देखो. एंड सेकेंड वॉज माई मॉम, बिकॉज माई मॉम भले वो ग्रेजुएट नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने बैठ के मेरे साथ में पढ़ाई की है, उन्होंने बैठ के मुझे समझाते थे. मेरे को साथ में कोई नहीं, सोना नहीं है, पढ़ते रहे. Because I have cleared my UPSC exams also, and that time my wife supported me after marriage and after getting children. After all these things, I have cleared my UPSC exams. मैंने लॉ किया, मैंने मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन किए. उसके बाद भी मैंने ज्वेलरी में भी रह के, मेरे फादर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, काउंटर पे गधा भी बैठता है. घोड़ा और गधा एक ही ब्रीड है. गधे पे ईंटें लगी जाती है और घोड़ों को रेस पे लगाया जाता है, पैसे लगते हैं. घोड़ा बन तो मैं मानता हूँ, नहीं तो बैठे रहे. So this was my motivation, my father. Very true. Very true. So your childhood friends and memories who have stayed together, your memories and your childhood friends who have impacted on your career. I'm so sorry because मैंने मेरे कैरियर बनाने के इसमें, पढ़ाई के इसमें, मैंने जो हर इंसान के साथ में होना चाहिए दोस्ती, वो मैंने छोड़ दी. मैंने दोस्तों की वैल्यू नहीं की जब करनी चाहिए थी. दोस्तों को छोड़ दिया, पढ़ाई में रहता रहा, तो दोस्त निकल गया और मैं वहीं रह गया. आज जब दोस्त की वो गैप देखता हूँ मैं, तो मुझे फील होता है कि नहीं, मैंने क्या घुमाया है. लेकिन ठीक है, आई हैव अचीव्ड समथिंग. सो फ्रेंड्स एंड फोज, आई डोंट हैव एनीथिंग. माय बुक्स इज माय फ्रेंड्स. Okay. How's your college life been? Oh, it was romantic. Share some College life was romantic, obviously. stories. I still miss my college life because college life में बहुत अच्छा ग्रुप था. अराउंड 20-25 लोगों का ग्रुप होता था. आई वाज यूज्ड टू बी द गैंग लीडर एंड आई वाज, बिकॉज कॉलेज में ही मेरे पास सारी एमिनिटीज थी. आई वाज बोर्न विद अ डायमंड स्पून, नॉट विद अ गोल्डन ऑल्सो, अ डायमंड स्पून. 11th स्टैंडर्ड में मेरे पास गाड़ी, ड्राइवर सब होते थे. उस टाइम पे नहीं होते थे, लोग बस और ट्रेनों में ट्रेवल करते थे, बट मैं गाड़ी ड्राइवर के सिवा आता नहीं था. मतलब दैट वाज द लेविश लाइफ स्टाइल विच आई हैपेंड इन कॉलेज. और जब ये लेविश होते थे तो उस टाइम पे फिर बाद में ऑटोमेटिकली फ्रेंड सर्कल बन जाता था, रोमिंग अराउंड. एंड देन अच्छा खासा टाइम बीत गया जो मिस करते हैं. Wow. So this cyber law field is very demanding. So how do you unwind, relax yourself when you go back home? After going back home, I shut down my professional career because I leave my office at around 4:30, 5 o'clock. I wind up because my brain shuts down. After reaching home at 6:30, I have my dinner. तो वो भी जल्दी हो जाता है. क्लाइंटल मीट होती है तो मैं 7:30-8 बजे क्लाइंटल मीट, बस उसके बाद खत्म. उसके बाद आई एंड माई टीवी एंड माई फैमिली. 9:30-10 बजे आए, ऑफ टू बेड. एंड मॉर्निंग 5 o'clock I get up. 5 to 6:30 I study. This is where I open my books again, that 1.5 hour in the early in the morning, because मुझे जो सिखाया गया मेरे स्कूल एज से, because I am done my schooling from पंचगिनी, तो वहाँ पे मुझे सिखाया गया कि जो सरस्वती का जो होता है वो सुबह सुबह होता है, Very अर्ली मॉर्निंग. तो मेरा 5 to 6:30 जो स्टडीज होती है, दैट इज वेयर आई ओपन अप माई बुक्स, और जो भी रिसर्च करना है फुल डे मेरा उसमें निकल जाता है. दिस इज हाउ आई कोप अप. Very true. Yeah, this Brahma Muhurat is the divine hour, and successful people follow this practice of daily morning ka, and very true. So, continuing our conversation, Pankaj, your favorite travel place and what are the memories which you I bring love back? nature. I don't like man created places. कॉन्क्रीट जंगल्स मुझे नहीं पसंद. मुझे जहाँ पे नेचर ने जो बनाया है, फॉर एग्जांपल जैसे द हिली रीजन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वे रियली आई गेट कनेक्टेड विद द नेचर. वहाँ पे 2 दिन सोच के जाते हैं और 5 दिन 6 दिन बैठ जाते हैं वहाँ पे. सो दैट इज वेयर द आई प्रीफर टू गो. So, which place? Can you suggest some? Obviously the hilly regions from the north, mostly the far east, or towards the north, which is the Kashmir and all those things.
बिकॉज वो एक अलग दुनिया है जहाँ हम बिकॉज वी आर स्टेइंग इन अ कमर्शियल सिटी विच इज अ प्योरली अ कॉन्क्रीट जंगल. हमें यहाँ पे पॉल्यूशन से लेके एवरीथिंग वी सी ओवर देयर. व्हेन वी गो ओवर देयर सबसे पहली चीज बून होती है, मोबाइल इज डिस्कनेक्टेड. हम आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गए एक 5-6 दिन के लिए. वी आर फॉर आवर सेल्स. So I like those places rather than visiting cities and all those. Very true, very true. Being the nature. So let's come to your अपना food choices. Very bad choice. अगर कोई मेरे साथ खाना खाने को आएगा वो भूखा मर के जाता है. Because I'm basically मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो सिर्फ दाल चपाती यही मेरा इंग्रेडिएंट्स होता है. Because I am a purely a राजस्थानी फूड ईटर. जब राजस्थानी डिश मिल गया तो मैं मेरा पूरा ये होता है. नहीं तो बस दाल और रोटी, दैट इज दैट सफिशिएंट. So any Rajasthani favorite place you like to go? ऑब्वियसली अभी मुंबई के अंदर तो अभी स्टार्ट में रेस्टोरेंट्स खुले हैं जहाँ पे राजस्थानी फूड इज ऑल्सो अवेलेबल. गुजराती थाली, बिकॉज बचपन से हम उसी एनवायरनमेंट में रहे तो लव और वो खाना है. प्लस हमारे टाइम पे जब व्हेन आई वाज इन द कॉलेज एंड ऑल वी नेवर यूज्ड टू गो आउट सो मच. बाहर का खाना इतना नहीं होता था. देयर वाज वेरी फ्यू आउटलेट रेस्टोरेंट्स जहाँ पे यही सब डिशेज मिलते थे. तो वो खाते खाते अभी आज सडनली कॉन्टिनेंटल इटालियन जो हमें समझ में ही नहीं आता मुझे तो मेरे बच्चे लोग लेके जाते हैं तो उनको भी मेरा मेनू पता है. डैड है ना, दाल राइस मंगा दो या दाल चपाती मंगा दो, इनका मेनू खत्म. दिस इज वेयर फूड चॉइस इज वेरी बैड. So everywhere home food. Yes, home food. I prefer home food. Okay. So Pankaj, like any book you're reading right now? ऐसे कोई स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है. रैंडमली ऑन द डिपेंड्स ऑन द टॉपिक. So like मोस्टली ऑन टेक्नोलॉजी आई रीड मोर. okay. So any book which has impacted you from technology or any other book? ऐसे कोई पर्टिकुलर ऑथर नहीं है कि भाई इसी ऑथर का मुझे बुक पढ़ना है. नो, आई सिलेक्ट, आई लाइक द टॉपिक, आई जस्ट सी द कंटेंट्स एंड आई स्टार्ट रीडिंग इट. तो पर्टिकुलर ऑथर नहीं है. No particular author. नो. And any genre is you're comfortable with? यस यस. That's very interesting. So Pankaj, describe Pankaj in one word or one line. Oh, very tough question. Passionate. That's And the always on the run to learn more. Bas, that's That's very interesting. Any hobbies or passion which you have continued from your childhood, or any things you want to do which will excite you? I'm a good networker. I like meeting people. I cannot sit at one place, first of all. कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, I like to meet. Because I see a potential के आज being a lawyer or whatever it is, मैं जिनको मिल रहा हूँ, not necessarily he should be my client or anything. Because after a span of 5 years, 6 years, I don't know what that person may turn up to. And this is my practical experience I've seen. कि मैं जिनको बोलता था अरे यार ये क्या भोंदू है, ये क्या आगे सक्सेस होगा, आज मैं उनको देखता तो मुझे लग रहा है मैं भोंदू और ये कहाँ पहुंच गया. सो आई लाइक टू मीट पीपल ऑफ वॉट एवर कैटेगरी दे आर. सेकेंडली हॉबीज के अंदर म्यूजिक इज माई पैशन. बट लेकिन कुछ कारण से नहीं सीख पाया, नहीं बन पाया. लेकिन आज भी अगर इफ आई एम सिटिंग आइडल, आई यूज्ड टू स्टडी विद द म्यूजिक ऑन. मैं फुल म्यूजिक चालू करके पढ़ाई करता था फ्रॉम माई 10th ऑनवर्ड टिल टुडे. आज भी मैं अगर ड्राफ्टिंग करने बैठा हूँ तो आई प्ले म्यूजिक. सो म्यूजिक इज माई सम पार्ट ऑफ माई वीक पॉइंट. That's interesting. So another conversation हो सकता है, your choices of music. So we are coming to the end of your personal round journey. Now the surprise round, the rapid fire round. You'll have to answer very fast. You like Android or iOS? Android. Okay. Tea or coffee? Tea. Early bird or night owl? Early bird. Okay. Favorite this vacation place? Kashmir. Favorite quote? कोर्ट मतलब which our legal court or what? No, quotation. Favorite saying जो आपको हर बार आते रहता है. ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पर्टिकुलर दिमाग या में. एनी सेइंग जो आपको इम्पैक्ट करेला लाइफ में. कीप ऑन गोइंग एंड नेवर सिट डाउन.
That's interesting. Uh, favorite movie? मैंने प्यार किया. Okay. Favorite song? ऐसा कुछ नहीं, बहुत से सारे फेवरेट है. एक है जिसमें आई गेट मोटिवेटेड ऑल्सो. धर्मेंद्र की मूवी है, गाड़ी बुला रही है, सिटी बजा रही है. Wow, दैट कीप्स ऑन मोटिवेटिंग मी ऑल्सो. that's interesting. And last question, your favorite star? नो वन. No one. अरे बाप रे. I don't like any real people. I like real people. If you tell me the real man, then Mr. Tata, Ratan Tata. Okay. He's my idol Yes, he is remarkable contribution he has because I done, met and him at twice, this age, so I know. okay, at this age also he keeps on Yes. motivating. So Pankaj, this has been a wonderful conversation which we had regarding the evolution of cybercrime, cyber law, the changes. Your one line, you're a very passionate person, which we can see. It was very heart touching conversation we had. So friends, do look forward to this special episode on the Coffee Conversation Show on YouTube, which will be uploaded very soon. And we will meet another guest speaker very soon in their place or on Zoom. It was very wonderful conversation which we had. So signing off, Lion Amir Virani, your host at Coffee Conversation. Enjoy your weekend. Stay safe.